આપનું સ્વાગત છે। શિલ્પ આરંભ ગિફ્ટ સિટી રન 3.0 ડ્રગ ફ્રી ફ્યુચર તરફ રન યોજાઈ ત્યારે સોનુ સૂદે રનનું ફ્લેગ ઓફ કર્યું। શિલ્પ ગ્રુપ અને સ્નેહ શિલ્પ ફાઉન્ડેશને તારીખ 15 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ ગિફ્ટ સિટી ગાંધીનગર ખાતે યોજાયેલ શિલ્પ આરંભ ગિફ્ટ સિટી રન એ રન ટુવર્ડ્સ ડ્રગ ફ્રી ફ્યુચરની ત્રીજી આવૃત્તિનું આયોજન કરીને ગર્વ અનુભવ્યું છે। પાછલી બે આવૃત્તિઓની અવિશ્વસનીય સફળતા પછી આ વર્ષની ઇવેન્ટનો ઉદ્દેશ્ય દેશભરના હજારો પાર્ટિસિપન્ટ્સને તંદુરસ્ત ડ્રગ મુક્ત ભારત માટેની મૂવમેન્ટમાં જોડાવા માટે પ્રેરિત કરીને એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કરવાનો હતો। આ વર્ષની દોડ માટે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે સોનુ સૂદ જોડાયા। સમાજમાં તેમના અપાર યોગદાન માટે જાણીતા તેમનું સંગઠન યુવાનોને સ્વસ્થ વધુ હેતુપૂર્ણ જીવન જીવવા માટે મિશન ઓફ એમ્પાવરિંગને વિસ્તૃત કરે છે। તેમની હાજરીએ દરેક સહભાગીને આ ઉમદા હેતુનો ભાગ બનીને ઉત્સાહિત અને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। સ્નેહ શિલ્પ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક સ્નેહલ બ્રહ્મભટ્ટ રાષ્ટ્રના ભવિષ્યના પાયાના પથ્થર તરીકે યુવાનોમાં તેમની અતૂટ માન્યતા શેર કરી હતી। ફિટનેસ અને શિસ્તમાં મૂળ રહેલ જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહિત કરીને અમે અમારા યુવાનોને માત્ર ડ્રગ્સના જોખમથી બચાવી રહ્યા નથી, પરંતુ તેમને સકારાત્મક પરિવર્તનના એજન્ટ બનવા માટે સશક્તિકરણ પણ કરી રહ્યા છીએ। જેમ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી કહે છે, યહી સમય હૈ, સહી સમય હૈ। ઉજ્જવળ આવતીકાલ માટે હવે કાર્ય કરવાનો સમય છે। ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ અને નશામુક્ત ભારત અભિયાન સાથે સંરેખનમાં આયોજિત આ ઇવેન્ટ શિલ્પ અને સ્નેહ શિલ્પ ફાઉન્ડેશનના સ્વસ્થ વ્યસનમુક્ત ભવિષ્ય માટેના રાષ્ટ્રના લક્ષ્યોને સમર્થન આપવાના સમર્પણનો પુરાવો હતો। ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયાના આદરણીય સમર્થન સાથે આ દોડ સામાજિક પડકારોને પહોંચી વળવા માટે શારીરિક તંદુરસ્તીની પરિવર્તનશીલ શક્તિને પ્રકાશિત કરી હતી। આ વર્ષની ઇવેન્ટમાં ભારતભરમાંથી 20,000થી વધુ દોડવીરોની ભાગીદારી જોવા મળી હતી। ગિફ્ટ સિટીની લીલીછમ હરિયાળી, સ્વચ્છ હવા અને કાળજીપૂર્વક આયોજિત રૂટ તમામ ઉંમરના અને ફિટનેસ સ્તરના સહભાગીઓ માટે અપ્રતિમ અનુભવ પ્રદાન કર્યો હતો। આ અર્થપૂર્ણ હેતુમાં તેમના યોગદાનને માન્યતા આપતા દરેક સહભાગીને AIMS પ્રમાણપત્ર પણ પ્રાપ્ત થયું હતું। શિલ્પ આરંભ ગિફ્ટ સિટી રન એ માત્ર એક રેસ કરતાં વધુ હતી। તે શક્ય તેટલી વધુ યુવા વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવાની ચળવળ હતી, જેને સ્થિતિસ્થાપકતા, આરોગ્ય અને એકતાનો સંદેશ ફેલાવ્યો હતો। मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ये तीन सेगमेंट किए हुए हैं और सभी में लाइक 21 किलोमीटर में भी रनर्स बहुत अच्छे पैमाने में इकट्ठे हुए और 21 किलोमीटर का फिनिश लाइन भी ऑलरेडी हो गया है। 10 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ हो गया है और 5 किलोमीटर बाकी है। प्राइज में क्या रखा है? प्राइस में 15 लाख प्लस एड ऑन मतलब बहुत सारी चीजें हैं, साइकिल्स एंड ऑल। बहुत इंस्पायरिंग है कि इतने हजारों लोगों को हम देखते हैं सुबह सुबह 5-5:30 बजे उठ के आते हैं दौड़ने के लिए। आज जब हम सोशल मीडिया की दुनिया में लगता है कि सब फोन्स पे लगे रहते हैं, देर से उठते हैं, डिसिप्लिन कम है, और जब हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं इतने लोगों को तो लगता है कि यार जब फैमिलीज को एक साथ दौड़ते हुए देखते हैं, मदर फादर छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सो इंस्पिरेशन मिलती है सबको देखकर। मुझे लगता है देश भर में हर शहर में ऐसी मैराथन रेगुलरली होनी चाहिए, साल में एक नहीं कम से कम 2 या 3 दफा, ताकि लोग अपनी जो स्ट्रेस है उसको मिटा सकें, साथ में दौड़ सकें, फिट रह सकें। फिटनेस हमेशा जरूरी थी। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तब से मैंने जिम जाना शुरू किया, तब से लेके आज तक हर रोज विदाउट फेल मैंने आज तक कभी ब्रेक नहीं लिया है। जिस तरह हम लोग खाना हर रोज खाते हैं, टीवी हर रोज देखने की कोशिश करते हैं, मोबाइल दिन में 10 आवर देखने की कोशिश करते हैं, उसी तरह फिटनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिन में एटलीस्ट 1 घंटा निकालिए। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कॉलेज में एक वादा किया था अपने आप से कि मेरी दिन के अंदर सिर्फ 22 घंटे हैं, 24 नहीं, बाकी 2 घंटे हमेशा फिटनेस के लिए रहे। वैसे आधा घंटा 1 घंटा अपने रूटीन में से निकाल दीजिए जो सिर्फ फिटनेस के लिए होगा। आई थिंक अगर आप फिट रहेंगे तो आपका परिवार फिट रहेगा, आपकी काम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो प्लीज स्टे फिट और फिटनेस की तरफ खास ध्यान दीजिए, खासकर आज के समय में। सर, आजकल यूथ मैं हमारा जो फाउंडेशन है 169 सेंटर्स को के साथ जुड़ा हुआ हेल्प करता है रीहैब के अंदर, कि जितने लोगों को तकलीफ है ड्रग्स की आप सिर्फ हमें बताएं, हम लोग उनको वहां से लेकर उनकी रजामंदी के साथ हम उनको रीहैब में भेजते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं। सो ये बहुत अवेयरनेस लानी जरूरी है कि ड्रग्स ना सिर्फ उस इंडिविजुअल की जिंदगी खराब करता है, लेकिन पूरी परिवार की जो जिंदगी है वो खराब होती है।
तो अगर आप अपने आप को फिटनेस की तरफ डालेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप ड्रग्स कम होने शुरू होंगे। तो आई थिंक फिटनेस एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कभी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के पास रहती है तो उनके पास बहाना मिल जाता है कि चलो ड्रग्स की तरफ जाएं। तो अगर आप फिट रहेंगे तो आप कितना भी मुश्किल समय हो आप उससे जूझ जाएंगे। तो स्टे फिट, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, और कोई भी अगर जरूरतमंद है ड्रग वाला आपको दिखता है तो उसको सोसाइटी से निकालने की या दूर करने की कोशिश मत कीजिए, उसका हाथ थामिए और उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। सर आजकल फिल्म भी साइबर क्राइम पे इसीलिए है ताकि वो अवेयरनेस दिला सकें। जब हजारों लोगों की हम लोग मदद कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हुए, कई लोगों ने सुसाइड्स किए। इनफैक्ट हमारी फिल्म का जो मूल जो कहानी शुरू होती है वो इसी चीज से शुरू होती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस साइबर क्राइम से निपटने का एक ही तरीका है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके आए। और फतेह भी जो मैंने फिल्म बनाई उसी के ऊपर है कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है और कैसे एक आम इंसान इसके खिलाफ एक जंग लड़ता है। थैंक यू सर। थैंक यू।